शेखुपुरा में एक जुल्म की दास्तान रकम होती है। यहाँ पर अपने लिए इंसाफ मांगना इंसान के लिए जुर्म बन जाता है। यहाँ पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, वो बम की मलिया का रिहायशी है। वहाँ का एक नंबरदार असलम, उसका बेटा शमशेर उनके घर में दाखिल होता है। उनकी भरजाई, उनकी भाभी के साथ उसके नाजायज़ मरासम होते हैं, जो वो देख लेता है। उसके देखने के बाद वो उसे मना करता है। उसका मना करना उसका जुर्म बन जाता है। ठीक 10 दिन के बाद वो अपने साथ मुसल्ला गुंडों को लाकर उसके को तशद्दुद का निशाना बनाया। वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ सलाम ਤੁਹਾਡੇ जी। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਫੁੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਮਜੀਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੌਣੇ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹਾਕੀਆਂ ਸੀ ਸੋਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਲੀਂਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੁਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖਵਾਉਣਾ ਜੀ। आपने देखा कि उसका कहना था कि बासर जिम्मेदार इतना बासर है कि उसने तशद्दुद के बावजूद, उसकी बाजू 2 जगह से फ्रैक्चर होने के बावजूद अभी तक उसका मेडिकल नहीं होने दिया, किसी जगह पर उसकी दरख्वास्त नहीं जाने दी। इवन कि उन्हें अपने घरों से निकाल बाहर फेंका कि अगर जब तक तुम ये कार्रवाई नहीं रोकोगे तुम्हें घरों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ उनके बड़े भाई की जो बेगम हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया था। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। क्या हुआ था वहाँ पे उस दिन? ਬਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਮਰੇਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, 10-12 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਸ਼ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 1 ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। जी आप बताएं कि क्या वाकया हुआ था उस दिन? ਇਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਮਰੇਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਅਸਲਮ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਗਲਤ ਤਲਕਾਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਦੇਵਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 8-10 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਮਰੇਜ਼, ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ, ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, 3-4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੁਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬਣਨ ਡਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਉੱਤੋਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ? साड़ी को मदद। जी नाजरीन, आपने देखा कि वो नंबरदार जो है, असलम नंबरदार, और उसका बेटा मुसलसल उन्हें धमकियां लगा रहा है कि उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, अगर कोई आया तो उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, ना ही उन्हें किसी जगह से कोई भी इंसाफ की तवक्को की जाए। वो हर मेरे साथ उनके जो लीगल वकील हैं यहाँ पर अहमद हसन पाशा साहब, उनसे जानते हैं कि उनके पास जब ये लोग आए तो क्या हालात थे और क्या असल वाक़यात थे, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पाशा जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? पाशा ठीक। साहब, ये बताएं कि ये जो वाक़या है वो बता रहे हैं कि उनकी भावज के साथ एक बंदे के नाजायज़ मरासम थे और जिसकी वजह से ये मामला बने, इसमें कितनी सदाकत है और क्या चीज़ें? जी ये रियलिटी है। इसकी भावज के साथ उसके नजायज़ मरासम थे और इसने उसे रोका है। और जब इसने उसे रोका तो भावज भी अपने जो ससुराल वापस चले गई है, तो ये बंदा भी वहाँ से फिर उस वक्त बाज आ गया। फिर इन्होंने लीगल प्रोसीडिंग करते हुए भावज ने एक 491 की पिटीशन दायर की है। बच्चे क्योंकि रियल फादर के पास थे, बच्चे कोर्ट ने भावज को नहीं दिए क्योंकि कोर्ट भी समझ गई है कि ये शी इज़ नॉट गुड करैक्टर। और जो वो नंबरदार का बेटा था शमरेज, उसका भी आना जाना साबित हुआ अदालत में। फिर जो क्योंकि वो बासर थे, उन्होंने अदालत
से इनकी पिटिशन्स वापस करवाई, इनके ऊपर असर डाला। ये क्योंकि वहाँ के गरीब लोग हैं, शरीफ घराने से तलक लगते हैं, वो बदमाश किस्म के लोग हैं, इन्होंने अपनी पिटिशन भी वापस कर ली। लेकिन सलामत का सिर्फ एक दावा चल रहा है गार्डियन कोर्ट में, और उसकी बेगम जो है वो राजीनामा करके वापस आ गई है। लेकिन जो नंबरदार था उसके बेटे को इस चीज़ का रंज था कि इसने मुझे मेरे घर, अपने घर से आने से मना किया। कल वो मसल्ला 10 लोगों के साथ गया है, वहाँ इसे जदोकोब किया है और इंटेंशन टू मर्डर, इसे मारने के लिए गए और अपनी पूरी नीयत करके इसे मार के वो वहाँ से आ गए हैं। जब पता चला कि ये अस्पताल में चला गया, 3 जगह इसकी बाजू फ्रैक्चर हो चुकी है, 5 इसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें कोई पालने वाला नहीं इसके अलावा, इसने कमाना तो बच्चों ने खाना। लेकिन ये सिस्टम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि ये इंसाफ तक पहुंच सके। हमने इसकी अदालत में भी पिटीशन दायर कर दिया, हॉस्पिटल से इससे कोई कॉपरेट नहीं मिल रहा, थाने से इसे कोई कॉपरेट नहीं मिल रहा। और जो नंबरदार का बेटा है, मैं सिर्फ ये वक्त के काजी और हुकूमत से पूछूंगा, जो CCD इदारा है वो नंबरदार, चौधरी, वडेरे इनके लिए नहीं बना, कमज़ोर लोगों के लिए बना गया। अगर CCD हरकत में आती है तो नंबरदार के बेटे को उठाया जाए, जो लोगों की इज्जतों को पमाल करता है, लोगों की चारदीवारी के तकद्दस को पमाल करता है, लोगों की इज्जतों के साथ खेलता है। अगर उसे मना किया जाए तो वो लोगों को मारता है, लोगों को कत्ल करने पे आ जाता है। मेरी हम्बल सबमिशन है दारों से, इसका लीगल नोटिस लिया जाए, और जो लीगल प्रोसीडिंग है वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम तो करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन मेरा सवाल CCD से है। जैसा कि आपने देखा कि उनका कहना था कि ये तमाम बातें जो दुरुस्त थी, और वो जो है नंबरदार वो इतने बाअसर लोग हैं कि उन्होंने इन्हें अपनी पिटीशन वापस लेने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद अब जब उसके बेटे शमशेर ने इस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो अब भी वो इनके ऊपर थ्रेट कर रहे हैं कि तुम्हें गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, अगर तुम लोग अपनी कोई कानूनी कार्रवाई करोगे तो उसमें तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी DPO शेखुपुरा से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को काइंडली अर्जेंट बेसिस पर देखें, और ताकि गरीब लोगों को इंसाफ मिल सके और आवाम का हुकूमत वक्त पर भरोसा कायम रह सके।